السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عرفان قاسمی، تبلیغ ٹی وی آفیشیل ہمارا چینل ہے جہاں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اسلام کی رہنمائی پیش کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس آیت شریفہ کے اندر روزے کا ابتدائی ٹائم اور انتہائی وقت بیان کیا گیا ہے۔ روزے کا بگننگ ٹائم اور اینڈنگ ٹائم بیان کیا گیا ہے کہ کس وقت سے روزہ شروع ہو جاتا ہے اور کس وقت جا کر کے روزہ مکمل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا عمل اس پہ ہوتا ہے کہ سحری کھانے کے بعد جیسے ہی فجر کی اذان ہونے لگتی ہے جلدی جلدی پانی پینے لگتے ہیں تاکہ دن میں پیاس نہ لگے۔ میرا خود عمل بچپن میں اسی پر تھا، لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ پانی کو اپنے اندر جمع کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اونٹ کے اندر رکھی ہے کہ اونٹ اپنے اندر پیاس سے زیادہ پانی کو جمع کر لیتا ہے، اور چونکہ اس کا سفر لمبا لمبا ہوتا ہے جب اسے پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کو اپنے کوہان سے نکال کر کے اپنے پیٹ میں منتقل کر لیتا ہے اور پیاس کو بجھا لیتا ہے۔ انسانوں کے اندر یہ صفت نہیں ہے، تو آپ چاہے جتنا بھی پانی پی لیں، اگر دن میں محنت مشقت والا کام کرتے ہیں یا دھوپ میں نکلتے ہیں تو پیاس بہرحال لگے گی ہی۔ روزے کے اندر پیاس کا احساس نہ ہو تو یہ کیسا روزہ ہوگا؟ تو آج میں یہی مسئلہ بیان کروں گا کہ ہمیں کس وقت سحری کھانا چھوڑ دینا چاہیے، یعنی کھانا پینا ہمیں کس وقت بند کر دینا ہے، اور پھر شام میں ہمیں کس وقت افطار کرنا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ انسان کو سحری اسی وقت تک کرنے کا اختیار تھا جب تک کہ وہ سو نہ جائے، یعنی سونے سے پہلے پہلے ہی سحری کر سکتے تھے، سونے کے بعد سحری کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی انسان مثال کے طور سے پورے دن تھکا ماندہ آیا گھر پہ اور لیٹا اور اسے نیند آ گئی، مغرب کے بعد ہی نیند آ گئی اسے، تو اب وہ سو کر کے اٹھنے کے بعد سحری نہیں کھا سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کھا پی سکتا ہے، بلکہ اب اس کو ویسے ہی اگلے دن پورا روزہ رکھنا ہوگا اور پھر شام میں جا کر کے وہ افطار کرتا۔ تو شروع میں یہ مسئلہ تھا۔ ایک واقعہ پیش آیا، ایک صحابی ہے حضرت قیس بن سرامہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ کھیت میں کام کیا کرتے تھے۔ کھیت سے کام کر کے جب گھر لوٹے تو بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، افطار کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو کچھ بھی افطار کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تو انہیں نیند لگ گئی۔ اب جیسے عشاء کا وقت ہوا تو ان کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرائے ہوئے اٹھے کہ ارے مجھے تو بھوک لگی تھی ویسے ہی، اور اب میں سو لیا، اب تو میں نیند سے اٹھ رہا ہوں، میں سحری بھی نہیں کھا سکتا، میں کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ کھائے نہیں اور کل ہو کر کے انہیں ویسے ہی روزہ رکھنا پڑا۔ تو چونکہ 2 دن کے وہ بھوکے تھے، دن کے اندر انہیں بے ہوشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر کے وہ گر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خبر کی اطلاع دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد اور اس طریقے سے اور صحابہ کرام کے بھی ساتھ واقعات پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسئلے کے اندر نرمی فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاتے پیتے رہو، تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہ سکتے ہو جب تک کہ صبح کی سفید ڈوری رات کی تاریک ڈوری سے واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں، اور یہ حاتم تائی جو مشہور ہیں جن کی سخاوت بہت مشہور ہے، ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے یہ کیا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کھاتے پیتے رہو اس وقت تک جب تک کہ صبح کی سفید ڈوری تاریک ڈوری سے واضح نہ ہو جائے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ 2 دھاگا لیا، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور اس کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر کے سو گئے، اور رات بھر وہ کھاتے پیتے رہے اور تکیا کے نیچے سے اٹھا کر کے دیکھتے رہے کہ سفید جو کالا دھاگا جو ہے وہ سفید ہو جائے گا، اس وقت تک ہمیں کھاتے پیتے رہنا ہے۔ وہ کھاتے رہے لیکن وہ دھاگا سفید نہیں ہوا، سورج نکل گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع دی گئی، وہ جا کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ میں تکیا کے نیچے دھاگا رکھ کر کے سویا، وہ تو سفید ہوا ہی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دھاگا سفید ہو جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ
सुबह की सफ़ेदी वाज़ेह हो जाए, रात के मुकाबले में रात की तारीकी छट जाए और सुबह की सफ़ेदी वाज़ेह हो जाए, उस जब तक कि सुबह की सफ़ेदी वाज़ेह ना हो उस वक्त तक खा सकते हो। यहाँ मुराद धागा नहीं है, बल्कि इस सफ़ेदी से मुराद सुबह की सफ़ेदी है और तारीकी से मुराद रात की तारीकी, सियाही से मुराद रात की सियाही है, धागे की सियाही मुराद नहीं है। तो जो सुबह की सफ़ेदी होती है उसे ही सुबह सादिक कहा जाता है। और इन दिनों तो मसला बहुत आसान हो चुका है कि हर इलाके में हर जगह सुबह सादिक के लिए कैलेंडर मौजूद होता है कि सुबह सादिक किस वक्त हो रहा है। और इसी तरीके से इफ्तार का वक्त, जो इफ्तार का वक्त सूरज के गुरूब होने का वक्त होता है, सूरज के डूबने का वक्त होता है, ये उस कैलेंडर के अंदर लिखा होता है। उसके अंदर देख करके इंसान आसानी के साथ फैसला कर सकता है कि किस वक्त सुबह सादिक है, हो शुरू हो रहा है, या सुबह सादिक होते ही सहरी करने का वक्त खत्म हो जाता है। जैसे ही सुबह सादिक हुआ, अब उसके 1 मिनट बाद भी हम सहरी नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे ही सूरज गुरूब, जो सूरज के गुरूब होने का वक्त है, जो सूरज के डूबने का वक्त है, उससे 1 मिनट भी पहले हम इफ्तार नहीं कर सकते हैं। सूरज के निकलने, सुबह सादिक के होने के बाद जैसे ही सुबह सादिक हो गया, अगर उसके 1 मिनट के बाद भी कोई इंसान कुछ खा पी लेता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। इसी तरीके से सूरज के डूबने से अगर कोई 1 मिनट पहले खा पी लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा और उस दिन का उसका रोज़ा नहीं होगा। और जो लोगों का ये अमल होता है कि अजान, सुबह की जब अजान होती है उस वक्त तक सहरी खाते हैं, सहरी खाते रहें, पानी पीते रहें, और जब मगरिब की अजान होती है उस वक्त इफ्तार करते हैं, तो एक बात ये अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि रोज़े का ताल्लुक अजान के साथ है ही नहीं, बल्कि रोज़े का ताल्लुक औकात के साथ है। सुबह सादिक से रोज़ा शुरू होता है और सूरज डूबने के साथ रोज़ा मुकम्मल हो जाता है। चाहे अजान हो या ना हो, उससे रोज़े का कोई लेना देना नहीं है। बल्कि बुखारी शरीफ के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, साहबे कराम से फरमाया कि देखो, बिलाल की अजान तुम्हें धोखे में न डाले, बल्कि बिलाल की अजान रात में ही हो जाती है। तुम बिलाल की अजान के बाद भी खा पी सकते हो जब तक कि अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम की अजान ना हो। जब अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम की अजान हो उस वक्त तुम खाना पीना छोड़ो। तो अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम की जो अजान होती थी वो चूंकि नाबीना सहाबी थे, उन्हें जब बताया जाता था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको खबर करवाते कि अब अजान दे, तो वो अजान देते थे। तो पता चला कि अजान अगर रात में भी हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। रोज़ा का ताल्लुक अजान से है ही नहीं, बल्कि रोज़े का ताल्लुक सुबह सादिक से है। और जो भी सुबह सादिक हो, सुबह सादिक का वक्त आप कैलेंडर के अंदर भी देख सकते हैं या मोबाइल के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे ही सुबह सादिक हुआ, अब इंसान कुछ भी नहीं खा पी सकता, ना खाना खा सकता है, ना पानी पी सकता है। और जो ये अमल लोगों का होता है कि अजान, जैसे ही अजान शुरू होती है और पानी पीने लगते हैं, तो मसला अच्छे तरह समझ लेना चाहिए कि अजान जो होती है सुबह की, यानी जो फजर की अजान होती है, वो हमेशा सुबह सादिक के बाद अजान होती है। सुबह सादिक से पहले अगर अजान हो जाए तो उस अजान का कोई एतबार ही नहीं होगा। इसलिए अजान हमेशा सुबह सादिक के बाद होती है। तो अजान शुरू होने के बाद इंसान अगर 1 घूंट भी पानी पी लेता है तो फिर उसका रोज़ा नहीं होगा। इस सिलसिले बहुत एहतियात से इंसान को ध्यान देना चाहिए और इसमें इंसान को एहतियात बरतना चाहिए। इसी तरीके से इफ्तार का जो वक्त होता है उसका ताल्लुक सूरज के डूबने से है, अजान से नहीं है। मगरिब की अजान हो या ना हो, सूरज डूब गया, जो गुरूब आफ्ताब का वक्त हो, उस वक्त आप इफ्तार कर सकते हैं। अजान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जहां मिसाल के तौर से अजान की आवाज़ ही नहीं जाती, तो जाहिर सी बात है वहाँ लोग इफ्तार के औकात से इफ्तार करते हैं, जो सूरज के डूबने का वक्त होता है उस वक्त इफ्तार करते हैं। इसी तरीके से जहाँ अजान हो रही है वहाँ भी अजान पे इसका दार व मदार नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि अजान जो मगरिब की होती है वो सूरज के डूबने के बाद ही होती है, लेकिन अगर कभी किसी से गलती हो जाए, किसी मुअज्जिन से, कि उसने 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले अगर अजान दे दिया मगरिब की और लोग इफ्तार कर लिए, तो उस दिन का रोज़ा नहीं होगा, बल्कि उस दिन का क़ज़ा करना होगा। ये कम इल्मी कुछ ज़माने पहले तक पाई जाती थी। एक जगह का वाक़या है कि
अजान का जब वक्त हुआ तो माइक खटखटाया जाता, पहले से मुअज्जिन जो अजान देने वाला होता माइक को खटखटाता, उसे फूंकता है। तो एक बूढ़ी औरत का घर पड़ोस में था, उसने कहा रुक जा अभी अभी हमारे घर के अंदर लोग सब सहरी नहीं खाए हैं, थोड़ा देर और रुक जाओ। तो लड़के ने कहा कि अजान का टाइम तो हो गया है, लोग खाए या ना खाए तो हम तो रुक नहीं सकते, अजान का वक्त हो चुका, मुझे अजान देना है। तो वो बेचारी बूढ़ी अम्मा जो थी वो कहते जा रहने दे, तेरे ही घर के लोग ना खाए, तेरी ही माँ ना खाई है, जा दे दे अजान। तो बहरहाल ये कम इल्मी की बात है, और कम इल्मी की वजह से लोग पहले ऐसे किया करते थे। लेकिन इस ज़माने में इल्म आम होता जा रहा है, इल्म को हासिल करना बहुत आसान होता जा रहा है। मालूम हो जाने के बाद इंसान को बहरहाल इस पर एहतियात करना चाहिए। एक दूसरा मसला और जो बहुत अहम मसला है वो समझ ले कि इंसान सो रहा था, सहरी खा करके वो सो गया और उठा तो उसे लगा कि अभी अजान नहीं हुई है और जल्दी जल्दी वो पानी पी लिया। या इसी तरीके से वाकया ये हुआ कि अजान वक्त से पहले हो गई और इंसान ने इफ्तार कर लिया। तो अब क्या मसला होगा कि एक बात ये बहुत मशहूर है कि गलती माफ है, अगर गलती से खा पी ले इंसान तो रोज़ा नहीं टूटता है। इस मसले को अच्छे तरीके से समझ ले। दो चीज़ें हैं, एक है भूल और एक है गलती। तो भूल की वजह से इंसान अगर खा पी लेता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटता, ये बात सही है। लेकिन गलती की वजह से अगर इंसान खा पी लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या है कि भूल का मतलब ये है कि इंसान को अपना रोज़ा याद ही नहीं है कि मैं रोज़ा हूँ और तब वो खा पी ले रहा है तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। मिसाल के तौर से कि वज़ू के बाद किसी को पानी पीने की आदत है और गैर रमज़ान में वो हमेशा पानी पीता रहा है, तो वो रोज़े की हालत में पूरे दिन रोज़ा रहा और शाम में जाहिर सी बात उसे प्यास लग जाएगी। असर की नमाज के वक्त वो वज़ू करने के बाद पूरा गट पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, पेट भर के पी लिया और उसे अपना रोज़ा याद ही नहीं कि मैं रोज़ा हूँ, तो अब इसका रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए कि उसे अपना रोज़ा याद नहीं है। लेकिन अगर रोज़ा याद है कि मैं रोज़ा हूँ, उसके बाद गलती से चला गया, मिसाल के तौर से अगर कोई सुबह में अजान के बाद पानी पी लेता है तो वो जान रहा है कि मुझे रोज़ा रखना है, तो यहाँ उससे गलती हुई है, इससे भूल नहीं हुई है बल्कि गलती हुई है, और गलती की वजह से अगर पानी पी लेता है या खाना खा लेता है तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से मगरिब के वक्त अगर गलती की अजान से 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले या 2 मिनट पहले अजान हो गई और गलती की वजह से वो इफ्तार कर लेता है 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले, तो ये गलती है, ये भूल नहीं है, उसे अपना रोज़ा याद है, तो इसे गलती कहा जाता है। और गलती की वजह से अगर इंसान खा पी लेता है तो रोज़ा टूट जाता है। हाँ, ये बात सही है कि रमज़ान में अगर इस तरीके से हुआ तो उस पर कफ़ारा लाज़िम नहीं होगा, लेकिन बहरहाल उसका रोज़ा टूट जाएगा, उस रोज़े को दोबारा बाद में फिर से रखना होगा।